Hello and welcome to the agenda. I am Ajay Kaul. Today we will talk about the start of the process of delimitation of assembly seats in Jammu and Kashmir. In Jammu and Kashmir, the process of redrawing constituencies has started. The aim of the exercise is to increase the number of assembly seats from 107 to 114. The delimitation has been pending for long, as it has been believed that the share of seats is lopsided in favor of Kashmir region to the disadvantage of Jammu region. In the agenda today, we will discuss this subject and try to understand how important is the exercise and what are its challenges. We have with us Manzoor Butt from BJP, Imranul Nabi from National Conference, and Pallavi Sareen, a journalist. But before we begin our conversation, let's have a look at this small report. Months after revoking Article 370 from Jammu and Kashmir, the central government had constituted the Delimitation Commission in March last year to withdraw the constituencies in the Union Territory. The idea behind the move is to increase the number of assembly seats from 107 to 114. Out of these, 24 seats are reserved for Pakistan-occupied Kashmir. Thus, effectively, the number of assembly seats in the Union Territory of Jammu and Kashmir for which elections can be held will go up from 83 to 90. The exercise is being carried out against the backdrop of grouse in Jammu region that the proportion of assembly seats is lopsided in favor of Kashmir region, because of which any party dominant in Jammu will never be able to form government. In the dissolved assembly of the erstwhile state, Kashmir region had 46 seats while Jammu region had 37 seats. The delimitation exercise is being carried out to correct this imbalance. The commission held its first meeting yesterday, but 3 associate members from National Conference boycotted it as they have reserved the process. It is believed that after the delimitation exercise is completed, assembly polls may be held in the Union Territory. Bureau Report. Now let's welcome our guests Inamul Nabi, Manzoor Butt, and Pallavi Sareen to the program. Welcome to all of you. I'll first go to Inamul Nabi. Nabi, how do you see this delimitation process that has started? Apparently, NC is unhappy, and that is why your MPs did not participate in the meeting yesterday. It is not being unhappy about it. I mean, the whole process is flawed. The point that we are challenging the Parent Act in the Supreme Court, that is the J&K Reorganization Act. Right. That is under challenge, that is under judicial scrutiny. So all these laws that follow up from the Parent Act, when the law itself is getting challenged, so there is no fun. Parties. We had earlier requested the government to put hold to such kind of exercises until the Supreme Court gives its verdict on the petition that we have filed. Okay. So, based on that judicial propriety, we have decided to stay away from the whole process. But your leaders, I have heard, they call it immoral process or whatever, immorality. It is a process of immorality. What does it mean? Why is it immoral? No, you are wrong. You are wrong. Nobody has called it an immoral. I don't know where from you are getting it, but nobody has said it. Justice Hasnain belongs to your party, I guess. Isn't it? Justice Saab has said, Justice Saab, the process has the letter. If you go through the letter, Yeah. you will understand why we are not participating in the process. Okay, let me. That was written to retired Justice Ranjana ji, the party G. Okay, now let me go to BJP spokesperson. Manzoor, you heard NC leader saying why they are boycotting or they are not participating in this process. What do you say on that? मुझे लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस को चाहिए अब
नाम अपना चेंज करके बाइकॉट पार्टी रख दे। जब भी यहाँ पर सेंटर कोई अच्छा फैसला जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए और यहाँ की यूनियन टेरिटरी के लिए करती है तो इनका बाइकॉट होता है। पहले इलेक्शन में पंचायत अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शन बाइकॉट किए, फिर डीडीसी बाइकॉट किए, फिर लड़ते तो है ये, लेकिन पहले बाइकॉट करते हैं। DDC, he has a point. DDC elections they have not boycotted. They did not boycott DDC elections. DDC इलेक्शन में तो पार्टिसिपेट किया था। इन्होंने कहा था जब तक 370 वापस नहीं मिलेगा तब तक हम डीडीसी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, लेकिन पार्टिसिपेट किया था बाद में। फिर लगा कि शायद अब लोग इससे बेवकूफ तो नहीं बनेंगे, फिर ही इन्होंने इलेक्शन लड़ा। लेकिन सबसे पहले बाइकॉट किया था कि जब तक 370 वापस नहीं आएगा हम किसी भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो जहां तक रही डिलिमिटेशन की बात, तो डिलिमिटेशन एक वक्त की जरूरत है, ना कि जम्मू रीजन के लिए, कश्मीर रीजन के लिए भी बहुत जरूरी है। यहाँ पर आप ऐसे एरिया देखेंगे जिसमें 10 जो डिस्ट्रिक्ट जो कि काफी बड़े हैं, जहाँ पर डिलिमिटेशन की जरूरत थी। तो मुझे लगता है एक अच्छा प्रोसेस था और हो रहा है। उसमें चेयर आपको पता है कमेटी एक बनाई गई सेंटर की, केंद्र की तरफ से, जिसमें हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह मेंबर थे, फारूक अब्दुल्ला साहब को भी मेंबर रखा गया। लेकिन बदकिस्मती से वही कि लोगों को किस तरीके से बेवकूफ बनाया जाए, आज इन्होंने अब इसका भी बाइकआउट किया है। इनाम you heard Manzoor Bhatt saying that आप हर चीज पे you are boycotting everything from panchayat polls to now why should you be boycotting if you are a member? I mean associate members, your MPs are associate members of the commission, so why should they boycott? If they have any reservation they can present their views there at the commission meeting. No, Understand the mandate that associate members have with the commission. First of all, neither do they have any power to change what the commission decides. Neither do they have any power to suggest anything that the commission decides. So there is no point being part of this process. As far as BJP is concerned, I mean, I don't know why they are making such fabricated lies about we boycotting DDC elections. And we have participated in the DDC elections, we participated in ULV elections, we participated in पंचायत elections. पहला हुआ था एक बार, तो अब उसको लेके आप पंचायत इलेक्शन तो आपने बाइकआउट किया था, बट अभी लेट अस गो फॉर द आई मीन टॉक अबाउट द बिगर प्रोसेस अबाउट डीलिमिटेशन। जैसे मंजूर भट्ट कह रहे हैं ये जरूरत है, क्या ये जरूरत है या नहीं है? नहीं, मुझे एक बात समझाइए, व्हाई इज इट नेसेसरी फॉर JNK ओनली व्हेन द होल कंट्री इज गोइंग फॉर delimitation? The Supreme Court because I'll tell you, Inam Nabi, the delimitation process was supposed to start by 2026. Yeah, because JNK it has not been happening. Why are they hurrying up? Why are they bringing up? Why are they bringing up JNK out of nowhere when the whole country in itself is going for delimitation? Because in JNK delimitation did not take place in '95. कभी नहीं चाहा। So just listen to me. It has been long overdue. If you go through documentary evidence, I am here giving you documentary evidence, you will come to know that this process was supposed to start by 2026, and the bill was that document was assembly. Just let me make you make your point, then I will tell you. JNK assembly had earlier passed a bill where the elected members, duly elected members in the assembly had given their assent for delimitation in the year 2026. And in that assembly, there were BJP members also. And at that point of time, they had even agreed to it. You can go and check the assembly proceedings also. So BJP had earlier whatever. To this Okay, have you? 2026 delimitation. Now suddenly they just want to bring JNK fast forward whatever their designs are. As far as JNK is concerned, they want to implement all these designs. Why single out JNK only? That is the whole point. Okay, now you are bringing this aspect into it. So Inam, let me ask you. No, first of all, my name is not Inam. My name is Imran. Please get my Imran name Nabi, right. Sorry, Imran Nabi. So if something has, been decided by JNK Assembly in 1996, so should that cannot be? Can that not be? Not 1996. It was a recent, I think it was passed in 2012 or something. No. I think you are right. You are wrong about that. It was in 96 or 98. So you can check because you can check that because it is very recent. Nevertheless, that is not what is
The date is not important. What is important was BJP members have accepted. At that point of time, they accepted it. Okay, Manzoor can answer. Manzoor, you can answer that. Elected legislature. नहीं, इमरान साहब, मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूँ, जब जो पंचायत राज एक्ट के तहत जम्मू कश्मीर में पंचायती राज जो 3 टायर सिस्टम है, वो तो बहुत पहले का लागू होना चाहिए था। आपकी काफी टाइम सरकार रही, तो आज अगर हम वो करवाए, आप कह रहे पहले पूरे देश में है, तो उसके बाद जम्मू कश्मीर में क्यों अभी करना? No, because वक्त की जरूरत थी, वो 96 Okay, let me गवर्नमेंट ने कभी नहीं चाहा कि जम्मू कश्मीर आगे बढ़े। लद्दाख को देखिए, लद्दाख आपने ऐसे ही छोड़ दिया था। आज देखिए लद्दाख कहाँ पहुँच गया। मंजूर, के बाद उनको इमरान आपके दौर में मिलना चाहिए था जी। Okay, let me ask Pallavi, we can ask Pallavi about this whole system. I mean, is it long overdue? Because there have been demand that Jammu has been neglected or it has been lopsided in favor of Kashmir, and that is why this Kashmir, dominated politics has not allowed this delimitation for and has been deferring it for decades. What do you say on that? Right now, the feeling in Jammu is that they do want the delimitation to happen, but there are various organizations in Jammu who want this delimitation to happen after the census 2021 is done. So that is one of the feelings. The other thing is that the regional parties of Jammu, they are feeling neglected, that the associate members that have been formed, they are member parliaments of Kashmir West parties and also the member parliament of the National Party, BJP. But the regional aspirations of the people demand that the regional leaders of political parties, whether that is the National Panchayat Party or whether it is the newly formed parties, whether it is the Muslim Party or the other parties in Jammu, they also need to consult it. And the fact of the matter is that the Delimitation Commission was formed nearly a year ago, and for 11 months, none of those people were consulted. A core part of any delimitation process is public consultation. So where is that public consultation? Whether the Kashmir parties boycott this delimitation or they do not boycott it, that is their prerogative. But when it comes to the entire Jammu region, the people are feeling left out even still. They are tired of Delhi taking decisions for them. They want to be consulted about these matters, and they are feeling that the regional parties or the regional organizations, whether public organizations, local organizations, business organizations, they need to be consulted about this. They need to be consulted, they need to be talked to. And one other important factor that I wanted to mention is that the Delimitation Commission, since it was committed nearly 1 year ago, 11 months later this meeting was called. There was a commission meeting since past 11 months. I mean, the chairperson, Justice retired Ranjana Prakash Desai, her tenure was for 1 year. Now they have to give her an extension. Otherwise, after March is done, the Delimitation Commission has to give its report. So within this 1 month, you want to wrap it up and speed up the process. That really sends out a wrong message to the people, and that gives heat to the apprehension that once again everything will be decided in Delhi and no one in Jammu will be consulted about it. Okay, but perhaps I'll assume that they will go to the Jammu and Kashmir also, and they will consult other stakeholders also. I'm assuming, I don't know, but at the same time, isn't it that the delimitation exercise is being carried out just because there has been a grouse in Jammu that the Jammu region has not got due representation in the assembly? I guess that is why the delimitation is being carried out. What do you say? I mean, there is that kind of feeling that if delimitation happens now, there will be equality between the two regions. I don't know how true that will be. That will only be possible when the Delimitation Commission gives its report. But there is that underlying feeling that maybe now justice will be done. Maybe now there will be equal assembly. So I don't know how that will be possible if population is one of the factors that is being considered. But there is that feeling in Jammu that maybe now there will be equality after this delimitation process is done. That is why I mentioned that some of the organizations want that this delimitation happens after census 2021. Yeah, right. So, Manzoor, I'll come to you. Yeah, as you heard me, that there have been एक नाराज़गी रही है जम्मू रीजन में कि ये जो सीट्स का जो शेयर है कश्मीर लॉपसाइड मतलब उसकी तरफ फेवर्ड है कि ताकि हमेशा जो सीएम बने वो हमेशा कश्मीर रीजन से आ जाए, तो उसको करेक्ट करने के लिए ये डिलिमिटेशन एक्सरसाइज की जा रही है। तो आप ये मानते हैं कि जम्मू रीजन में एक ग्रीवांस रही है, जेन्युइन ग्रीवांस रही है, शिकायत, क्या कहते हैं
आपकी बात सही है। जब डिलिमिटेशन 96 से पहले जब हुई थी शेख कुबला के टाइम पे, तब कहीं ना कहीं जम्मू के एरिया के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई थी। वहां पर इतनी सीटें बड़ी बड़ी एरियाज में बांटी गई थी कि जहां पर एक में जहां 3 सीटें होनी थी वहां पर एक ही सीट बना दी। अब हो तो डिलिमिटेशन पूरे जम्मू कश्मीर में हो रही है। यहाँ पर भी मैं आपको बताऊं कि कश्मीर में खास करके श्रीनगर में ऐसे एरिया काफी बड़े जो है उनको एक ही सीट में बांटा गया है, जहां पर कि क्योंकि उनकी वजह से वहां का जो असेंबली मेंबर होता है वो नहीं पहुंच पाता है। तो ना कि अभी जम्मू के लिए, हाँ जम्मू में काफी वक्त से ग्रेवेंस थी कि वहां पर जो एरिया है वो कम बांटे गए थे, तो वो भी कहीं ना कहीं जेन्युइन ग्रेवेंस है। लेकिन डिलिमिटेशन को दोनों रीजन के बराबर देखा गया है। अगर यहाँ पर भी कहीं पर कमी लगी वहां पर की चीज बढ़ाई गई और जम्मू में भी इस चीज को किया गया। बिकॉज जो हमेशा है ना, ये 46 सीट जो कश्मीर को दी गई और 37 सीट जम्मू के लिए रखी गई, जबकि जम्मू की पॉपुलेशन ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा है, तो ये तो नाइंसाफ़ी जम्मू के साथ रही है कि नहीं रही है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल वो सही बात है। मैंने तो कहा कि पास्ट गवर्नमेंट ने बहुत अभी तक जम्मू कश्मीर को अंधेरे में रखा था, नहीं चाहते थे कि यहाँ का डेवलपमेंट हो। आपने देखा लद्दाख जो कि तीनों एक ही खिता होता था, जम्मू कश्मीर लद्दाख, इन्होंने लद्दाख को भी ऐसे ही छोड़ दिया था जिसके कारण वो बहुत सफर कर रहे थे इतने वक्त में। वो तो आज मतलब उन्होंने एक नया सूरज देखा जब उनको वहां पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिली गई। तो इस तरीके की डिस्क्रिमिनेशन हुई थी। मुझे लगता है उनके साथ इंसाफ हो रहा है और जम्मू को भी जितना शेयर जो पॉपुलेशन के हिसाब से मिलना चाहिए वो मिलेगा। इमरान, आई विल कम टू यू। एज यू हर्ड, बीजेपी वाले कह रहे थे कि दैट नेशनल कॉन्फ्रेंस, अंडर नेशनल कॉन्फ्रेंस देयर हैज बीन डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट जम्मू एज वेल एज लद्दाख। सो व्हाट डू यू से ऑन दैट? इमरान नबी। देखिए सबसे पहले आपको ये समझ लेना चाहिए कि आप एक प्रेमाइस बना रहे हैं जम्मू वर्सेस कश्मीर का, ये बहुत ही डेंजरस है और बहुत गलत। मैं प्रेमाइस नहीं बना रहा हूँ, ये फैक्ट है जी। नहीं ये फैक्ट नहीं है, मैं आपको फैक्ट जम्मू में नाराजगी है। आई नो जी, समझना नहीं है, मुझे पता है। आई नो इट ना, मुझे समझाइए मत पहली बात। आई नो इट, आगे बताइए। ना मैं आपको बोल रहा हूँ, आपने कहाँ गलत बोला? आपने ये गलत बोला कि जम्मू को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली। क्या गुलाम नबी आजाद कश्मीर डिवीजन ड्यू रिप्रेजेंटेशन आई एम सेइंग ड्यू। नहीं, एक सेकेंड, आपने बोला कि अभी जम्मू से कोई चीज सीएम नहीं आया। क्यों नहीं आया सीएम? गुलाम नबी आजाद कहाँ से थे? वेयर वाज ही फ्रॉम? वो तो जम्मू डिवीजन के है ना। आई सेड कि जो सीएम बनेगा, जो लार्जेस्ट पार्टी है, वो हमेशा कश्मीर से बनेगी। आपने पहले ये डिसाइड कैसे किया कि जम्मू से क्यों कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है? गुलाम नबी आजाद कहाँ से? क्या ये फेयर है कि 46 सीट कश्मीर को मिलनी चाहिए और 37 सीट जम्मू को मिलनी चाहिए? क्या ये फेयर है? आप पहले अपनी चीज को करेक्ट करिए। मैं कोई करेक्ट कर रहा हूँ। जो लार्जेस्ट पार्टी, सीएम बनता है लार्जेस्ट पार्टी से ना। लेट अस नॉट डिस्कस दैट। सीएम लार्जेस्ट पार्टी से बनता है। आपने अब आप चेंज कर रहे हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपने बोला कि जम्मू को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली। जम्मू को रिप्रेजेंटेशन मिली और जम्मू के गुलाम नबी आजाद साहब चीफ मिनिस्टर बने, ये एक फैक्ट है, ठीक है। दूसरा, ये जो डिलिमिटेशन होगी वो एज पर पॉपुलेशन सेंसस के तहत होगी। अब 2011 की जो सेंसस है, अगर आप देखोगे कि आप अपनी आबादी कितनी है जे&के की इस टाइम पे पूरे जे&के की आबादी 1.25 करोड़, राइट, ठीक है जी। आप सुन रहे हैं? हाँ मैं सुन रहा हूँ। उसमें आपने ये बोला कि जम्मू जो है, उसमें लद्दाख जो है, लद्दाख की टोटल वो लेह और करगिल को मिला के कुछ 2.5 लाख के करीब होती है बस। नहीं, लद्दाख तो अलग है अब। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ ना। आप बोल रहे हैं, मैं आपको एक पर्सपेक्टिव समझा रहा हूँ। और जम्मू प्रोविंस और श्रीनगर कश्मीर प्रोविंस, इसमें ज्यादा फर्क नहीं है। आपको समझ आया? आप बोलिए, मैं समझ रहा हूँ। आप बताइए, मुझे पता है, आप बताइए जी। नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ। आप बोलिए। 2011 की सेंसस आप बोलिए, उसमें आप देखिए कि जम्मू में 1.5 के इर्द गिर्द जो है पॉपुलेशन थी। 2011 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। बोलिए। हाँ बोलिए, बोलते जाइए। हेलो, आप बोलते जाइए, मैं सुन रहा हूँ। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, I think we lost communication. Maybe Pallavi, I'll ask you. As you heard Imran Nabi saying that there is no discrimination with Jammu, and Jammu is getting due representation. What do you say? I just
one saying that Ghulam Nabi Azad is an exception, not the case. An exception is not the case. He's one in all the teams that have taken charge of this. He's one person. Jammu is an entire region that from Banhal to Lakhanpur. No, no. So If the I, entire no, no. thing that one created Pallavi, in so many years. Pallavi, if I maybe I don't know what to intervene with him because he represented Congress and Congress was an ally of National Conference. National Conference was the biggest party and he was just a smaller ally. He doesn't. He may he not be knowing that. He just happened to be represented, have been elected from Jammu region. That doesn't make him the representative of Kashmir, because National Conference was the bigger party, bigger ally party in that. I know that. So you can say about Jammu grievance. Yeah, Pallavi. Considering that it is quite visible that Jammu has not gotten its fair share of representation in the government. It is completely visible. As you also mentioned that then I just give it credit that Ghulam Nabi Azad, at least there is one person. So people in Jammu also like to own him that okay, there was one person from Jammu division. But then again, it was one person. The question is not the case. So even now after the invitation, we do not know what will happen. Maybe there will be equiparity, maybe there will not be. But just saying that Jammu has gotten due representation over the previous years, I mean, you don't know if the future will change, but so far at least except what has happened, and that shows that no, Jammu has not gotten due representation in all the previous years. Right. I think that is why a national conference used to defer this delimitation exercise. Do you agree with that? I think people from national conference will be better able to answer that question. Yeah. Maybe if they start by accepting this, they will be willing to go forward and consider Jammu an important part of game and not just say limited position. Okay, let me ask Manzoor about this. मंजूर, आपने सुन लिया कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले कह रहे थे कि जम्मू के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ और नेशनल कॉन्फ्रेंस गुलाम नबी आज़ाद जम्मू को रिप्रेजेंट करते थे. आप कैसे देखते हैं इसको? नहीं, देखिए, एक बात तो चलो हम मानते हैं कि जो गुलाम नबी आजाद साहब वो जम्मू रीजन से बिलोंग करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छे एज चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के साबित हुए थे, जिन्होंने अच्छे काम किए यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, यहाँ की डेवलपमेंट के लिए. तो लेकिन कहीं ना कहीं हमेशा देखा गया नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा जो पल्ला बारी रखना चाहती थी वो कश्मीर में, क्योंकि कश्मीर में ये सबसे ज्यादा रिलीजियस पॉलिटिक्स खेलते थे कि देखिए अगर बाहर का कोई हिंदू चीफ मिनिस्टर आता है इनके, तो वो यहाँ पर आप लोगों को आपके साथ सौतेला व्यवहार करेगा. तो इस तरीके की फोबिया कश्मीर में बनाया गया था, लेकिन धीरे धीरे वो खत्म हो गया. देखिए कहीं ना कहीं आज अब लोग समझ गए हैं कि लोगों को चाहिए कि आज विकास चाहिए, डेवलपमेंट, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्टल्स. तो कहीं ना कहीं आज लोग समझ रहे हैं कि अब हमारी दिशा, हमें अपने रियासत को कहाँ लेना है. तो इनाम नदी के पास अब कोई जवाब नहीं होगा आपके लिए, फिर ये आपको ही आपके साथ ही आर्गुमेंट में उलझते हैं. देखिए इनका जो पीएचडी 7 पार्टियां जो मिल गई थी, सजाद लोन ने इनको लेफ्ट किया. अब इनकी आइडियोलॉजी, अब सजाद लोन साहब कह रहे हैं कि जो हमारा जो लाइक माइंडेड था वो अब मिला नहीं, तो अब हम अलग अलग हो रहे हैं. अब देखिए ना, अब कितना बेवकूफ है जम्मू कश्मीर, कितना लूटेंगे ये. कल अल्ताफ बुखारी साहब जो कि पीडीपी के साथ ही रहते थे, पीडीपी में मिनिस्टर रहे, उन्होंने कहा 70 साल इन लोगों ने कश्मीर के रिसोर्सेस को लूटा. अब इनके पास जवाब ही नहीं है. अब ये कहेंगे कि जम्मू से कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन थी जम्मू वालों के साथ. क्यों जम्मू वालों को बेचारों को बराबर का हक नहीं मिलता? जो पैसा डेवलपमेंट के लिए बराबर सीट पे आना चाहिए था वो तो कश्मीर में ज्यादा, जम्मू में वो डेवलपमेंट फंड बहुत कम होते थे. तो कहीं ना कहीं चीजें थी, अब मुझे लगता है वो दुरुस्त हो रही है. और नेशनल कॉन्फ्रेंस को नेशनली इन सब चीजों के लिए जवाब नहीं है अब आपके पास. वो लोगों को जवाब दे, वो आपको जवाब दे. तो वो ये बार बार क्यों डिफर कर रहे थे? ये जो डिलिमिटेशन का प्रोसेस 2026 तक क्यों टाला था, जब हर जगह हो गया है? जो बाकी कंट्री में 1991 में हो गया था, तो जम्मू कश्मीर में 2026 तक क्यों नहीं होना चाहिए? सर वही मैं कह रहा हूँ, जो डायनास्टी फ्रॉल जो यहाँ पर पॉलिटिक्स चलती थी, खानदानी राज जो चलते थे यहाँ पर, ये कभी नहीं चाहते थे कि इस खानदान के बाहर किसी के हाथ में सत्ता जाए. मैं आपको बताऊं, पंचायती राज जब यहाँ एक्ट लागू हुआ था,
तो काफी वक्त पहले पंचायत इलेक्शन फर्स्ट टायर सेकंड टायर बीडीसी होना चाहिए था, कब का होना चाहिए था। लेकिन बदकिस्मती से देखे ना, वो 2019 में हो गया। 1989 में पंचायती राज आया था। में हुआ। अब ये डालते क्यों थे? इनका होता था कि हमारी जो बिजनेस है, जो हमारी सत्ता हमारे हाथ में रहती है, वो आम लोगों तक पहुंचेगी और हमारे हाथों से निकल जाएंगी। इस वजह से ये इन चीजों को महसूम रखते थे, यहाँ की आवाम की, यहाँ के जम्मू कश्मीर के लोगों को इन सबसे दूर रखते थे, कि ताकि जो इनकी जो ये जो घरेलू पॉलिटिक्स है ये बाहर ना जाए। तो ये चीजें ये रेफर करते थे। तो इमरान, आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ? जी, आप जुड़ गया, बोलिए। तो आपने मंजूर भट्ट की बात सुन ली कि वो आप फैमिली पॉलिटिक्स वाज डोमिनेटिंग? मैंने नहीं सुनी, क्या बोल रहे हो? वो कह रहे हैं फैमिली पॉलिटिक्स डोमिनेट कर रही थी, इसी के वजह से कश्मीर का भला नहीं हो पा रहा था। फैमिली पॉलिटिक्स मींस नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो फैमिली रूल है। ये तो ये पूरे कंट्री में यही एक लगा के बैठे हुए हैं, फैमिली पॉलिटिक्स। आप बीजेपी में देखिए कितने पब्लिक के इनके मेंबर्स हैं पार्टी में, चाहे साउथ में हो, नॉर्थ में हो या सेंट्रल इंडिया में हो। देखिए फैमिली पॉलिटिक्स, अगर यहाँ मंजूर मिनिस्टर बने ना, मंजूर आप सुनिए मंजूर मेरी बात इनको सुनो पहले। जी इमरान, अगर तोमर साहब या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला became चीफ मिनिस्टर, they became chief minister after people voted for them. They were duly elected members. ये कोई बादशाहत नहीं थी यहाँ पर, हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं। They contested, they duly contested all these elections and they won these elections. राइट। चाहे उमर साहब ने जीता या अभी रिसेंटली मेंबर एज पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला वन दी इलेक्शन। राइट। तो आप मुझे बताइए इसमें कहाँ से आ गया क्या नाम है जो बीजेपी बार बार ये कहती है कि फैमिली राज, ये कोई यहाँ पर बादशाह चल रही थी? यहाँ पे डेमोक्रेसी थी। या आप बोलते हैं कि इससे पहले बीजेपी के आने से पहले मंजूर लेट हिम कंप्लीट। बीजेपी का तो यही कहना है चीजें हो रही है पिछले 70 सालों में, जितना भी गलत हुआ वो मंजूर कर रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है आपने इंडिपेंडेंस। मंजूर ये पहली कहने का मतलब ये है, देखिए ये एक मिनट कौन सा आर्गुमेंट, मतलब आप ही देखिए, आप यू कैन नॉट डिस्क्रेडिट कर सकते हैं आप पुरानी गवर्नमेंट्स को, चाहे कांग्रेस हो या बाकी गवर्नमेंट हो, जिससे उन्होंने काम किया, उनको कंटिन्यूसली डिस्क्रेडिट करते हैं, डिमीन कर रहे हैं। राइट। क्या अभी तक अगर इंडिया में अभी इस टाइम पे हम लेवल पे पहुंच गए कि सेल्फ सफिशिएंसी के लेवल पे पहुंच गए, तो इसमें आप क्रेडिट नहीं देंगे कांग्रेस हुकूमत या बाकी हुकूमतें जितनी की आई? चाहे अगर आप यहाँ पर JNK में आप देखिए मंजूर जो कि पार्लियामेंट का इलेक्शन चुनाव लड़ सकते थे, मंजूर इनको कंप्लीट करने दो। अगर ये फैमिली पॉलिटिक्स नहीं है यार, मंजूर कंप्लीट है ना बीजेपी वालों में, यही प्रॉब्लम है, ये सुनते नहीं है दूसरों की बात। मंजूर इनको कंप्लीट करने दो, उसके बाद आप बोलेंगे। बिफोर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल, जो गवर्नमेंट नीति आयोग जिसको बोलते हैं, वहां से जो रिपोर्ट निकलती है उसमें आप देखिए एनसीआर में हम हेल्थ पे कहाँ पर थे, एजुकेशन में कहाँ पर थे। अगर आप देखेंगे पॉवर्टी का इंडेक्स जो है पूरे कंट्री में सबसे कम था JNK में, ठीक है। तो आप उसका क्रेडिट नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमतों को भी नहीं देते हैं, या कांग्रेस की हुकूमत जो थी यहाँ पर, और जो काम हुए हमने। आप देखिए लोगों ने फैसला लिया 2014 में, उसको रेस्पेक्ट करता है। Right. I respect the verdict of people, but they also need to respect that all these parties they have यहाँ पे उन्होंने जग नहीं मारे। Right. So अगर इस टाइम पे एक सिस्टम बना हुआ है, this system was created because earlier government worked hard, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट हो या कोई और गवर्नमेंट, और हमारे नंबर्स आर विद अस। मैं तो ये हवा में बात नहीं, नंबर्स यू कैन गो एंड चेक ऑल दीज। राइट मंजूर, यहाँ पर एक जितना पर्सपेक्टिव बनाया जा रहा है, पूरे कंट्री में पर्सपेक्टिव बनाया जा रहा है, तो उसमें वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट। मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट व्हाट बीजेपी सेज इज द फैक्ट। राइट। बीजेपी जो बोल रही है वो एक अपना एक उनको एक नैरेटिव चलाना है पूरी कंट्री में, बट वो नैरेटिव सही नैरेटिव नहीं हो सकता। वो नैरेटिव, उस नैरेटिव में बहुत सारे फॉल्ट है, उस नैरेटिव में बहुत सारी गलतियां हैं। इनको हुकूमत करने की इस टाइम पे दे हैव द मैंडेट, दे शुड वर्क फॉर पीपल। राइट। सो मंजूर आज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आज
100 रुपए पहुंच गया पेट्रोल का लीटर। हाँ। ठीक है, 90 रुपए हो गया डीजल का। आप जो है आप इसमें भी पुरानी सरकारों से जो है ब्लेम करेंगे, तो ये किस तरीके की क्या है? मंजूर, आपको 7 साल हो गए, या। आप बोलिए आपने क्या किया अभी पूछते हैं बीजेपी से। बीजेपी मंजूर, ही हैज अ पॉइंट कि पिछली गवर्नमेंट्स को आप हाउ कैन यू डिस्क्रेडिट, दे हैव आल्सो वर्क, दे हैव आल्सो डन सम वर्क, तो बीजेपी उनको डिस्क्रेडिट क्यों करते हैं ऐसे? बीजेपी आप इनको बताइए कि जो डेवलपमेंट खास करके कुछ गिना सकते हैं व्हाइट पेपर पे कि इन 70 सालों में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए किया? क्या ये मुझे बता सकते हैं कि जो आज 3 टायर सिस्टम यहाँ लागू हो गया, डीडीसी चेयरमैन हर डिस्ट्रिक्ट में बन गया, हर ब्लॉक में अभी वो काम करेगा, चाहे वो बीजेपी का बना, पीएचडीडी का बना, एनसीपीडीपी का बना, लेकिन चेयरमैन बना, वो काम कर रहा है। क्या इनके दौर में वो डेवलपमेंट हुई थी क्या? क्यों लद्दाख को हमेशा डिस्क्रिमिनेट किया गया? जो उनके हुकूक होते थे वहां पर, ये सीटें वहां से वहां पर वही 370 का राग सुना के उनको बहला के वहां जो डेवलपमेंट होनी थी, जो इंस्टीट्यूशन, जो हेल्थ सेंटर वहां होने चाहिए थे, क्या इन्होंने किया? आप इनको डेवलपमेंट गिनाइए, आप बताइए क्या कौन सी खास डेवलपमेंट इन्होंने इन 70 सालों में कश्मीरी इसके लिए किया? सर मैं आपको बताऊं, मेरी एज 30 है। एक फ्लैट बना था फारूक अब्दुल्ला के दौर में, यहाँ पर फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर था, और लगभग 10 सालों के बाद वो कंप्लीट हो गया वो फ्लैट। गवर्नमेंट में हमने 4 फ्लाईओवर यहाँ पर बनाए और वो मुकम्मल हो गए 4 सालों में सर। ओके, 10 साल इन्होंने एक फ्लाईओवर को बनाने में लगा दिए। ओके मंजूर, हमारा टाइम खत्म हो रहा है प्रोग्राम का, बट आई थिंक ये डिबेट कंटिन्यू होगी। आई थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द डिबेट बिकॉज वी हैव टू कंक्लूड, आवर टाइम इज अप। थैंक यू. This is all in the agenda today. Thanks for watching. I'll be back with another important topic tomorrow. Till then, goodbye.